Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So we have already discussed what is standard template library. We know that template with the help of templates we can do generic programming. What is generic programming is irrespective of the data type and all that, we can define the standard classes and the algorithms. Okay, like some standard classes we frequently need, like stack, queues, vectors, maybe sets sometime. So these type of standard classes which are frequently used in many of the applications. See, one method is that I can have my own template, template class as well as function. I can have my own template class and function. But if there is a provision that already compiler is giving you those standard set of classes and the function, then it is easier for the programmer to directly use those predefined classes and function. Okay, so that is the intention of having STL in C++. आप नॉर्मल टेम्पलेट से भी अचीव कर सकते हो टेम्पलेट क्लास सपोज यू वांट stack very frequently in your application. So what you can do, instead of having data type specific classes like integer के लिए एक class, float type के stack के लिए एक class. So instead of having data type specific classes in your application, you can have a template class. है ना? तो template से भी आप achieve कर सकते हो. But if you are having template class, everything you need to define, like the example that we have seen. Say suppose this is a vector class. We have seen this example, है ना? This is our own template class. We can define our own template class. It has nothing to do with STL. STL मैंने यहाँ पे use नहीं किया है. I'm having my own template class wherein one template data type I'm using T1. So in this vector class, this is my I mean user defined class. Okay, so vector class I have defined, and then wherever I'm not sure about the data type, it can be integer type of vector, float type. So there I'll replace that data type with this T1. Okay, so here I'm not sure whether this array will hold integer type of contain or float. So in that case, I'll declare this with T1. Okay, wherever I'm sure I'll specifically mention the data type, but here I'm not sure. Size तो किसी भी type के data मतलब array की size तो integer ही होगी, irrespective of whether it is double type of array, character type of array, integer. हर एक की size तो integer ही होगी. So wherever I'm sure I'll mention the data type. Wherever I'm not sure about the data type, there I'll mention the template class that I have created. Okay. So like that, I have written my own vector class. I can use it here. I can declare it. This is the definition of this class. यहाँ पे मैंने उसको class को मेरे class को यहाँ पे define किया. And then in my program, in my application, wherever I required, I can use this vector. Simply while declaring the object, how do we declare the object? This is the class name. तो क्लास नेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. दिस इज कॉल टू द कंस्ट्रक्टर. ओके, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, दैट इज ऑप्शनल. अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है तो कॉल करो, अदरवाइज सिंपली ऑब्जेक्ट यू कैन डिक्लेयर. है ना, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है पैरामीटराइज, सो दैट इज द रीजन दैट वाज देयर. अदरवाइज आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते, क्रिएट कर सकते हो. And only one difference is whenever that is a template class, while declaring the object, we have to mention the data type. ये हमें करना ही पड़ता है. whenever we are declaring any object of that this vector is a template class, है ना. तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका डेटा टाइप मेंशन करना है. क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमने मेंशन नहीं किया है कि T1 इज व्हाट, T1 टू बी रिप्लेस्ड विद एक्चुअल डेटा टाइप ना. तो किससे रिप्लेस करना है T1 को, तो फॉर दिस ऑब्जेक्ट यू रिप्लेस इट विद इंटीजर. सो दैट इज द पर्पज ऑफ हैविंग दिस इंटीजर ओवर हियर, कि इस T1 की जगह पे कौन सा बिल्ट इन डेटा टाइप आना चाहिए. So that is the very purpose of giving these angular brackets with data type. Okay, तो ये क्या है कि like now this once this template class is ready, can I declare float type of vector now? Yes. What changes I need to do? वही class use करना है, मैंने फिर से class को नहीं declare किया है. मैं क्या करूंगी यहाँ पे, just simply I will say vector. Now I want to create float type of vector. तो simply I will say float and then I will say maybe object 1. अगर मुझे साइज मेंशन करनी है तो लाइक दैट आई मेंशन, अदरवाइज सिंपली ऑब्जेक्ट, है ना, ओबीजे 1.
So like this, once that class is ready, this class is ready, I can reuse it for different data types. So that is the very purpose of having templates in your application. तो आपको अभी ये template class एक बार create हो गया तो integer float के लिए अलग से लिखना नहीं पड़ेगा. Same class I can use for integer, for float, for double, for character as per my requirement. तो ये मैंने achieve कर लिया with the help of templates. Irrespective of data type, I can use this generic class as per my requirement, right now? Okay, so now the next question is why to have STL then? Who will answer this question? So who will answer this question? Why we need STL? What is the difference between this this template class and having STL? Yes. See, template class is what this entire class you have defined. Though it is with irrespective of data type and all that we are using it, but this definition we have written, है ना? हमने खुद ने उस क्लास को लिखा है, उसमें functions, constructor, everything we have written all these things, है ना? So is there any way to avoid this definition? ये definition मुझे खुद को नहीं लिखना है. मेरा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? डायरेक्टली ये यूजिंग से. I want to directly use these classes instead of defining them here. है ना? यहाँ पे डिफाइन करने से क्या है कि like I have to on my own I have to write this entire code. मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आई विथ टेम्पलेट आई गॉट दैट फ्लेक्सिबिलिटी विच फ्लेक्सिबिलिटी irrespective of data type I can use this class, so that flexibility is achieved with template, no doubt about it. लेकिन is there any method or if I get these type of classes ready made कि जो स्टैंडर्ड क्लासेस है जो मुझे फ्रिक्वेंटली लगते हैं, मुझे पता है कि वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे, तो ये मुझे फ्रिक्वेंटली लग रहा है. डायनेमिक एरे मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे साइज स्टैंडर्ड नहीं किया, आई डिक्लेयर इट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड रन टाइम आई कैन इंक्रीज इट साइज एज पर माई रिक्वायरमेंट. तो ये मेरी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है विथ वेक्टर कि मुझे डायनेमिक एरे चाहिए, फिर उसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, कभी रिमूव करने हैं, कभी डिस्प्ले करना है. आई कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट, बट द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग वेक्टर इज व्हाट? डायनेमिक एरे. आई एम नॉट finalizing its size at the time of declaration itself. So that is vector array. स्टैक मतलब मुझे पता है कि किस टाइप से लीफो मैनर से उसे परफॉर्म करना चाहिए. So everything I know how it operates and all that, but the only concern is that I don't want to define क्योंकि it is a well-known thing, or globally it is known to everyone that stack performs in this manner, queue performs in this manner. ये standard type से operate करते हैं ये सारे data structure. तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो हर एक प्रोग्राम को जब भी मैं C++ यूज करती हूँ तो व्हाई ईच प्रोग्रामर हैज टू राइट हिज ओन कोड? अगर कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, व्हाई कंपाइलर इज नॉट प्रोवाइडिंग इट? कंपाइलर को प्रोवाइड करनी चाहिए वो सारी चीजें. अगर वो स्टैंडर्ड है तो कंपाइलर हैज टू टेक केयर ऑफ इट, व्हाई नॉट, है ना? हाँ, मान लो अगर उसमें मुझे मेरा कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन देना है तो आई कैन हैव माय ओन टेम्पलेट क्लास, कि मुझे अलग तरीके से उसे ऑपरेट करना है तो देन आई कैन हैव माय ओन टेम्पलेट क्लास. लेकिन जो चीजें स्टैंडर्ड है, व्हाई नॉट टू हैव लाइक से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कंपैरिजंस है. स्ट्रिंग कंपैरिजन सेम मेथड इज देयर एवरीवेयर. स्ट्रिंग या जो भी आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशंस करने हैं, तो इफ स्टैंडर्ड मेथड्स आर देयर देन व्हाई नॉट टू यूज द प्री डिफाइंड थिंग्स, है ना? तो सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर मेरा लाइक इफ आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड क्लासेस, स्टैक्स, क्यूज, वेक्टर्स, ये स्टैंडर्ड है, उनका ऑपरेट करने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, देन व्हाई आई एम डिफाइनिंग इट अगेन एंड अगेन? व्हाई माय कंपाइलर इज नॉट प्रोवाइडिंग मी रेडीमेड क्लासेस फॉर दोस थिंग्स? Okay, so that is the purpose of having standard template libraries. What is standard template library? Whatever standard template classes and functions are required, all these things are directly available in that library. Library मतलब जैसे like you can relate it with your normal library जहाँ पे books directly available होते हैं, या फिर in programming what is library? All these header files which are having some standard functions. Okay, so similarly
Can I have a common library wherein all these required or most frequently used classes are available, directly available? Okay, so that is nothing but your standard template library, जहाँ पे ये जो आपके most frequently used classes है, ये सारी definition उसके अंदर है in that library. You just have to say hash include and name of that library. फिर आपको वो एक बार include कर दी तो you need not have these definitions of the classes. Directly वो वहां पे available है. तो आपको क्या करना है? You just have to use these declaration. Directly declare करो उसके object and use it. अगर वो डायरेक्टली अवेलेबल है एंड यू आर डायरेक्टली डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट, सो व्हाट शुड बी द पॉइंट, मतलब उसमें सीखना क्या है हमें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न? इफ डायरेक्टली ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, मुझे करना ही नहीं है ये, तो एसटीएल वाई आई नीड टू लर्न? अगर मुझे डायरेक्टली यूज ही करना है तो सीखने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं ना. इन दैट केस what you need to learn in STL is what are the functions. यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि मैंने कौन कौन से फंक्शन लिखे हैं. यहाँ पे init लिखा है, display लिखा है. I know because I have written, so I can use those function here. लेकिन STL किसने लिखा है आपके वो सारे क्लासेस? द कंपाइलर हैज रिटन ऑल दोस थिंग्स, है ना. तो कंपाइलर ने अगर लिखे हैं, आपको लिखने नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज देम एटलीस्ट, है ना. उसके अंदर कौन से फंक्शंस कंपाइलर ने करके रखे हैं, हाउ टू यूज दोस फंक्शंस एंड ऑल दैट. दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन STL. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एसटीएल क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स. आपके टेम्पलेट और टेम्पलेट फंक्शन हमने ऑलरेडी कवर किया है in the previous unit only, previous to previous. But here in this unit, why standard template library is to be learned? Okay, the purpose, is it clear to everyone? Yes or no? Or still Yes, ma'am. doubt? Yes, clear. Yes, ma'am. ओके, तो हमें अभी सीखना क्या है? लाइक दिस इज ऑलरेडी डन बाय द कंपाइलर इन दैट लाइब्रेरी. हमें पहले तो ये देखना है कि इफ आई हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्पलेट, विच लाइब्रेरी टू इंक्लूड, ये पहला क्वेश्चन आता है. तो दैट लाइब्रेरी नेम वी शुड नो. सेकेंड थिंग इज व्हाइल डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिक्लेयर, वो तो हमें पता है कि वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप. ओके, देन व्हाट ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर क्लास, वो मुझे पता होने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस उसमें अवेलेबल है, कि वो मैं डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ, है ना. सो हाउ टू यूज और हाउ टू एक्सेस दोज एलिमेंट्स इन द वेक्टर, सो ऑल दोज थिंग्स आई शुड नो, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन STL. Okay, so now as we have already seen this particular PPT, we'll quickly go through it. So introduction part we have already discussed. Mainly it is having containers, algorithms and iterators. तो what is container? All your data structure. जैसे कि हमने अभी example देखा है vector. Vector itself is a container. It is a data structure. Stack is a data structure. Queue is a data structure. So those data structure to be defined with the help of classes. अभी हमने वेक्टर को कैसे डिफाइन किया? विद द हेल्प ऑफ क्लास. सिमिलरली स्टैक क्यूज के लिए भी हमें क्लास लिखना है. Okay, so STL में all those classes are called as container. The container is there to hold all those classes. एक container में वो सभी standard classes को डाल दिया है, जो भी आपके data structures आपको application में लगते हैं frequently. So all those classes or data structures are available. Those objects are available over here. Okay, just a moment. I'll take this. Just 1 second.
Hello. Yes, sorry for the interruption. So we were talking about this containers. So containers are holding all the data structure, the classes required for that. Okay. Now data structure तो आपके बन गए, classes बन गए, लेकिन उसमें से elements कैसे निकालने हैं? Like suppose vector is there, तो vector में से if I have to position it to the starting at the beginning, if I have to position it at the end, or if I have to take out the second element from the vector, so all those things I need to access all the elements from that container, है ना? मुझे कुछ तो यहाँ पे इस डेटा स्ट्रक्चर से वो elements access करने हैं. I have to perform different operation. So how to access all those elements, or how to locate your pointer to add that particular location in that vector or a stack or a queue. So for that purpose iterators are there, है ना? इटरेटर से क्या होता है कि हम वो पोजीशन को अलग अलग जगह पे लेके जा सकते हैं, है ना? वेक्टर को, like those pointers, getting those pointers to all the data structure or those elements, वो element को you want to access, or you want to make the pointer to point to the first element in the vector, second element in the vector, last element in the vector. So that is nothing but iterator. किसी specific elements को आपको access करना है या point करना है, that is with the help of iterators. Okay. An algorithm is a standard algorithm. These data structure, on these data structure you can perform some standard algorithms or functionalities. Okay, so those are standard algorithms. So mainly today we'll mainly focus on containers and iterator part with example. Okay, so container and these iterators with example we can discuss in today's lecture. Algorithm we'll see next time. Okay, तो कंटेनर्स के टाइप्स हमने उसी दिन देख लिए थे, सीक्वेंस, एसोसिएट, डिराइव्ड कंटेनर्स एंड ऑल दैट. ओके, द डिफरेंस आल्सो वी हैव सीन. ओके, सो टुडे मेनली विल डिस्कस अबाउट इटरेटर्स एंड कंटेनर्स, है ना? इटरेटर इज व्हाट? Iterators behave like pointers, as I told you, and are used to access container elements. मतलब container आपने बना दिए, लेकिन किसी भी element को अगर आपको access करना है तो with the help of pointers you can access them. कि point to the first element in the vector, point to the last element in the vector. So this is done with the help of iterators. They are often used to traverse from one element to another, a process known as iterating through container. मतलब हम containers के through iterate कर रहे हैं, we are moving forward and reverse direction with the help of iterators, है ना? Different types of iterators are there based on how they move through container. मतलब इनपुट टाइप के, रीडिंग टाइप के, फॉरवर्ड डायरेक्शनल, किस टाइप से वो मूव होते हैं. रैंडमली दे कैन मूव, दोज इटरेटर्स कैन रैंडमली मूव, दे कैन मूव इन अ सीक्वेंशियल मैनर. सीक्वेंशियल मैनर मतलब पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट से ही हमेशा स्टार्ट करनी पड़ेगी, देन सेकंड. अगर आपको मान लो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना है वेक्टर में, तो हाउ विल यू सर्च? यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? पहले आपका पॉइंटर बिगिनिंग से होगा, एंड वन बाय वन यू विल मूव फॉरवर्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? So those type of containers move in forward or reverse direction, and those are sequential. Okay. अब random type के iterators कौन से होते हैं कि sequential searching नहीं होगा उसमें, directly with the help of some unique key you can search. कि मुझे अगर suppose मैं एक question कर दूं कि is there any student with roll number 10 here? So if I can directly locate my pointer to the 10th position, that role, that student, that record which is holding the record of the 10th roll number student, so if I can directly move to that particular record, then it is called as random iterator. Okay, so different types of iterators are there, sequential or random. Okay, now this is with the help of some example we'll try to understand this concept. Okay, how to have or how to use these STL how to use these STL classes. This example I have explained here. So this, as I told you, this vector is already available in the STL. Okay, so how to declare its object? Even if you compare, the way of declaration is exactly similar the way we declare it when we define our own classes. How do we declare the object? That name of the class, name of the object. Here
calling the constructor with size if required. Okay, अगर आपको initially size देनी है कुछ तो आप दे सकते हो यहाँ पे. And this is the data type for which data type you want to create this object, है ना. तो उस टाइप से हम ये create कर रहे हैं. तो now vector we are creating. Okay, vector class is there which is standard class. Now I am not talking about this vector class which we have defined. मैं किस वेक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, which is available in STL, predefined, but the way of declaration of the object remains same. हमने कैसे किया वो, this is predefined class vector available, this is the object of that vector, and this is what the size I mentioned, initial size. Okay, so initially size would be 3 for this vector. Okay, here I am calling the constructor. Constructor क्यों? क्योंकि मैं इसको at the time of declaration I am passing this size, so this is called to a constructor. And then most importantly in angular brackets I have to mention the data type. So this declaration of vector remains same irrespective of it is whether your vector class or STL vector class. Okay, then it is vector is nothing but what, an array but dynamic sized array. Okay, so like with array what all operations we can perform, all those operations we can perform on this. जब हम array declare करते हैं we can simply say v of 0 is equal to 7. मतलब क्या होगा कि 7 this number will get stored at which location, 0th location. इसमें कितने लोकेशन अवेलेबल है, 3 लोकेशन अवेलेबल है. इन 3 लोकेशन के लिए एड्रेस क्या होगा, v of 0, v of 1, v of 2, है ना. 0 to 2 will be the index for this. Okay, तो 0th पोजीशन पे मैंने क्या किया, 7 को स्टोर किया. 1th पोजीशन पे मैंने क्या किया, v of 0 that is 7 plus 3 मतलब 10 कहां पे जाएगा, v of 1. And for v of 2 what I'm doing is v of 0 plus v of 1. I'm adding these two things. मतलब v of 0 is 7 and v of 1 is 10. So 7 plus 10. So 17 will get stored at v of 2. मतलब यहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने उसको वैल्यूज असाइन किया. ओके, तो v of 0 will be 7, v of 1 is 10, v of 2 is 17. तो जिस तरीके से आप नॉर्मल एरे को एक्सेस करते हो, मतलब STL को आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है. इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल. इनफैक्ट आपको ईज देने के लिए STL is introduced. Okay, it is for the what you say, for helping the programmers or the developers. Okay, making their job easy so that you can directly use those things, है ना. तो मैंने यहाँ पे क्लास को डिफाइन नहीं किया, आई एम डायरेक्टली यूजिंग इट वेक्टर को, एंड द वे आई एम एक्सेसिंग नॉर्मल एरे आई कैन एक्सेस दीज वेक्टर्स. ओके, अब इसमें एडिशनल क्या मिलता है, मतलब ये तो हम भी कर सकते थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ एरे, बट व्हाई आई एम यूजिंग STL हियर. अगर मैं एरे से कर सकती हूँ तो क्यों कर रही हूँ फिर ये सब. तो व्हाट एडिशनल थिंग्स आई एम गेटिंग. ओके, तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू इटरेटर्स आर देयर. इटरेटर मतलब मैं इटरेटर्स आर नथिंग बट पॉइंटर्स, मैं उससे ट्रैवर्स कर सकती हूँ. तो which iterators are there, like here I am using one of the iterator, v dot beginning. v dot begin is what, your pointer will start pointing to the initial position, 0th element पे जाएगा, है ना. जब मैं v dot end बोलूंगी तो वो कहाँ पे जाएगा, वो end pointer लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, मतलब 17 पे जाएगा. मतलब बिगिन वाला पॉइंटर कहाँ पे आपका, इस पे है, v of 0 पे. एंड वाला कहाँ पे है, 17 पे है. So with the help of begin and end, these are the iterators. Okay, just to explain this concept in detail, what I'll do is we'll go through this. It is available in on this website if you want. Okay, so this website you can refer for this. So I'm highlighting this. Okay, so here this explanation is available of iterators. As I told you, with vector, how many iterators are there? With vectors, we are getting 4 types of iterators: begin, end, C begin, and C end. So 4 types of iterators we are getting. Begin का पर्पस क्या है? It gives an iterator that points to the first element in the vector. पहला element जो है vector का उस पे point करेगा. End will point to the last end element of the vector. Now these two are similar to the above mentioned this, but one difference is there. It does not have the ability to modify the element.
जब आप सी बिगिन करते हो, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट, सी एंड एंड सी बिगिन, जब आप ये पॉइंटर यूज करते हो तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है इस पॉइंटर को कि यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट एलिमेंट। अब जब ये यूज करते हो तो यू कैन मॉडिफाई, आप इटरेटर का पर्पस क्या है कि उस पॉइंटर को वहां पे लेके जाना, उस एलिमेंट पे, लेकिन वहां पे लेके जाने के बाद डू यू वांट टू मॉडिफाई दैट एलिमेंट? अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यू हैव टू यूज बिगिन एंड एंड। आपको सिर्फ ट्रैवर्स करना है, उसको मॉडिफाई नहीं करना है, आपको बिगिनिंग पे जाना है लेकिन एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं करना है, तो यू कैन हैव सी बिगिन देयर। मतलब सी बिगिन से क्या होगा, वो कांस्टेंट तरीके से एलिमेंट हैंडल होगा, वो यू आर गिविंग दैट रिस्ट्रिक्शन कि डू नॉट मॉडिफाई द element at the beginning. You can make that pointer move to the beginning position, but do not or it won't allow you to modify that particular element. So that is the only difference between C begin and C end, begin and C begin. Similarly, end and C end. C stands for constant here. अगर आपको मॉडिफाई नहीं करने एलिमेंट तो आप ये यूज करो, अगर आपको मॉडिफाई करने वेक्टर के एलिमेंट तो आप ये दोनों यूज करो, बिगिन एंड एंड। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब वो कैसे करना है यूज एंड ऑल दैट पार्ट विल सी हियर, ओके। बट बिफोर दैट सम मॉडिफायर्स आर आल्सो देयर। इटरेटर मतलब क्या है कि पॉइंटर टू ट्रैवर्स थ्रू दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन मॉडिफायर्स भी होते हैं। मॉडिफायर मतलब क्या है, चेंजिंग सम एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि पुश बैक। पुश बैक इज व्हाट, यू कैन ऐड द एलिमेंट एट द एंड। पॉप बैक मतलब एंड से आपको रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द टेल यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट। पुश बैक मतलब एंड में पुश करेगा, दैट इज एडिंग इट एट द एंड। ये पॉप करेगा, रिमूविंग फ्रॉम द एंड। व्हाट इज इंसर्ट, फॉर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट टू द वेक्टर एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन। मतलब पुश मतलब हमेशा एंड से ही पुश करेगा, बट अगर आपको इन बिटवीन कहीं पे इंसर्ट करना एलिमेंट, फोर्थ लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन पे या जीरोथ लोकेशन पे, इन दैट केस यू कैन यूज इंसर्ट, स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करने के लिए, ओके। देन इरेज इज देयर, it is used for removing a range of elements from a specified location। मतलब इरेज मतलब स्पेसिफाइड रेंज निकालेगा, मतलब सेकंड टू फोर्थ आपको अगर इरेज करने हैं एलिमेंट तो इरेज इज देयर। और अगर पूरी तरीके से आपको पूरा वेक्टर ही आपको डिलीट कर, आई मीन रिमूव करने हैं सारे एलिमेंट्स, सो इन दैट केस यू कैन हैव क्लियर। मतलब हम डिलीट नहीं कर रहे वेक्टर को, क्लियर कर रहे हैं। क्लियर मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स है वो निकल जाएंगे लेकिन एम्प्टी वेक्टर वहां पे रहेगा, ओके। वी आर नॉट डिलीटिंग द वेक्टर, वी आर क्लियरिंग द एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ एलिमेंट को हम निकाल रहे हो वहां से, तो दैट इज क्लियर। So these type of modifiers are also available. As I told you, STL में आपको पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि आपको import क्या करना है, सबसे पहले तो include क्या करना है। तो what we need to include to use the vector, ये लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। वेक्टर नाम की एक लाइब्रेरी है दैट वी नीड टू यूज और इंक्लूड व्हाइल यूजिंग दी वेक्टर क्लास। अगर स्टैक को करना है तो स्टैक को इंक्लूड करना है आपको, यहाँ पे dq को करना है तो include dq। so whatever stl class that you want to use, accordingly that library you need to include, that is the very first thing that you need to do। सेकेंड, आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके एलिमेंट आपको कैसे एक्सेस करने हैं। एलिमेंट एक्सेस करने के लिए विच इटरेटर्स आर अवेलेबल, सो दीज आर द इटरेटर्स अवेलेबल, है ना। मतलब पॉइंटर फॉर्म में ये काम करते हैं, पॉइंटर जैसे, है ना। देन यू शुड नो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू मॉडिफाई दोज एलिमेंट। ये क्या है, सिर्फ पॉइंटर से एक्सेस करना है इटरेटर, लेकिन अगर मान लो आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो दो सेट ऑफ फंक्शन यू शुड बी अवेयर। तो वेक्टर के साथ ये फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, दोस यू कैन डायरेक्टली यूज, ओके। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन दैट क्लास, ओके। तो नाउ आफ्टर दैट, ये अगर आपको सब पता है एसटीएल में, तो उसके बाद क्या है, सिर्फ आपको यूज करना है उसको, है ना। और एट द बिगिनिंग यू शुड लाइक गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, जो भी स्टैंडर्ड आपको लगता है डेटा स्ट्रक्चर में। लाइक हियर एसटीएल कंप्लीट स्टडी तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज एसटीएल। मतलब ऐसे कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसमें एसटीएल में जितने सारे क्लासेस, जितने सारे डेटा स्ट्रक्चर है, you should by heart all those classes and the functions and the iterators which are available। ये like this is impractical, है ना। ये
नहीं हो सकता है, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट एटलीस्ट स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स विच यू फ्रिक्वेंटली यूज, है ना, जैसे कि वेक्टर आपको लगता है वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे, या स्टैक है, डी क्यू है, तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो, दोज विच यू हैव लर्नड इन डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इन दिस सेमेस्टर यू आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, तो एटलीस्ट वो वाले जो क्लासेस है यू गो थ्रू इट. आई विल एक्सप्लेन वेक्टर्स इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. हम एक एग्जाम्पल इन थरो विल स्टडी वन एग्जाम्पल, but at least you should learn or you should go through stacks and queues also related to STL, है ना, so that is at least expected. So one complete vector class I'll explain you with respect to STL, मतलब STL में जो हमने ये theoretical structure पढ़ा है, this one. So with respect to vector we'll try to understand this complete structure, है ना, STL कैसे काम करता है and what is STL. So with respect to one data structure we'll try to completely understand this STL concept, okay, and on your own also you can go through some standard things which you require, like this DQ you can study, है ना, vector will cover DQ you can study, then stack and queues which are available as the derived container. So at least those things you can study on your own. So one method we have seen that with the help of these iterators we can move your pointers, okay. Then like using modifiers you can modify those elements, है ना, कैसे करना है that example we'll discuss in detail. मॉडिफायर से भी कर सकते हो, या आपका स्टैंडर्ड जो तरीका है लाइक विच यू आर फैमिलियर, v of 0 7 v of 1 is this, इस तरीके से भी कर सकते हो. यू कैन चेंज द एलिमेंट एट एनी पोजीशन एंड ऑल दैट. सो जो आपको फैमिलियर तरीका है उससे भी आप कर सकते हो, बट इन एडिशन टू दैट मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर, ओके. तो दोस थिंग्स आल्सो यू कैन यूज, ओके. नाउ how to use that with the help of examples we'll try to understand. I hope the difference between iterators and modifier is clear to you all. Iterator मतलब pointer जैसे, pointer, these are the pointers, है ना, traverse करने के लिए use होता है, और modifier is set of functions which are used to modify the elements. तो इनका काम क्या है, लोकेशन को सेट करना, और इनका काम क्या है एक्चुअली वो मॉडिफाई करना या चेंजेस करना एंड ऑल दैट मॉडिफिकेशन विद दैट एलिमेंट, है ना. Now we'll start with the example. Yes, any doubt was there? No, ma'am. No. So with the example we'll try to understand. The first thing, as I told you, we have to include that particular library. जो भी ये बाकी सब आपका प्रोग्राम सेम रहेगा, hash include iostream using namespace standard, उसमें कुछ नहीं. जो changes है I'm highlighting those things. So here I want to use vector standard template, so I'll say hash include vector, है ना. वो मैंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का जो भी क्लास मुझे यूज करना है, आई इंक्लूड दैट पर्टिकुलर क्लास, ओके. नेक्स्ट इज नाउ इन मेन व्हाट आई डू इज आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर, है ना. मैंने यहाँ पे वेक्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है. So this is the vector and this is the object that I am creating over here. Okay, so num is a vector which I have created, object of that particular class. And then this object class I have created for this particular vector, and if you observe it remains exactly same. यहाँ पे कुछ आपको अलग लग रहा है, जैसे हम template class का object create करते हैं, similar method is there, है ना. अगर मुझे यहाँ पे इनिशियल साइज देनी है तो आई कैन गिव साइज ऑल्सो इन पैरेंथेसिस. यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया है तो डायनेमिकली इट विल कंसिडर, जैसे आप इनपुट डालते जाओगे डायनेमिकली दैट साइज विल बी क्रिएटेड. लेकिन यहाँ पे मैंने दिया नहीं है कुछ, तो लाइक इफ आई वांट टू स्टार्ट विद सम 10 साइज और आई कैन गिव दैट ऑल्सो, ओके. तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी इंक्लूड हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया नम्स नाम से, ऑब्जेक्ट नेम इज नम्स. Now how to put elements in that nums? So one method we have seen is like this standard method. We can have a for loop I is equal to 0 to 10 and all that, है ना. तो v of I is equal to, और जो भी आप डालना चाहते हो या इस तरीके से using square bracket you can initialize. Another method is with the help of these modifiers. ये methods कैसे use करना है, okay.
और इस मेथड से हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. ओके, तो यहाँ पे लाइक आई एम सेइंग nums dot pushback इंस्ट्रक्शन आई एम यूजिंग. ओके, so what I'm saying, nums is the object name, so object name dot pushback function I'm using, and whatever value I want to put there, मुझे क्या करना है 1 2 3 4 ऐसे मुझे एलिमेंट्स उसको उसमें डालने हैं. तो फर्स्ट इज a value is 1, तो 1 will get stored, then 2, then 3, so likewise 1 to 5 numbers I'm pushing back मतलब जो भी nums में अगर मान लो इससे पहले कुछ एलिमेंट्स थे, अभी तो हमने नहीं डाले, बट अगर होते यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये पुशबैक क्या करता है, एंड में जाके उसको ऐड कर देता. इट वोंट ओवरराइट. अभी तो हमने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, एम्प्टी वेक्टर इज देयर, तो पुशबैक इज व्हाट, इट विल गो ऑन एडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स इन द वेक्टर, नम्स वेक्टर. तो अभी आपके वेक्टर की साइज क्या हुई है, what is the size, how many elements are there, 5 elements are there, है ना. तो 5 ये डायनेमिक है, आपने साइज मेंशन नहीं किए, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेक्टर. इट इज डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली इट इज दैट मच साइज इज गिवन. अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स हमने डाले हैं, तो वी वांट टू डिस्प्ले दोज एलिमेंट्स, है ना. तो उसके लिए इटरेशंस हमें कैसे करने हैं इसमें इन नम्स. तो वन स्टैंडर्ड मेथड विच वी नो इज विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम कर सकते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, और फिर प्रिंट और सी आउट b ऑफ i. वो आपका एक नॉर्मल तरीका हो गया. दूसरा विद द हेल्प ऑफ दीज इटरेटर्स से हम कैसे एक्सेस, अभी हमें क्या करना है, मॉडिफाई नहीं करना है. मॉडिफाई के लिए हम ये यूज किया हमने, पुश बैक एंड ऑल दैट. हमें अभी क्या करना है, एक्सेस करने एलिमेंट्स. तो एक्सेस करने के लिए इटरेटर्स वी नीड टू यूज. तो कैसे करने हैं इटरेटर्स को यूज, लाइक हियर इन फॉर आई एम सेइंग a is equal to nums begin क्या करता है, दिस पर्टिकुलर इटरेटर विल point your pointer to the beginning or first element of the vector. Okay, तो ये आपका पॉइंटर जो है, a is a pointer, it returns a pointer, क्योंकि इटरेटर रिटर्न्स पॉइंटर्स. तो पॉइंटर कौन सा है, कहां पे स्टोर हो गया आपका, a में. ओके, तो a will hold the pointer. Okay, purposely I haven't created the specific type of pointer here. Okay, purposely I have given auto so that it can hold any type of pointer, क्योंकि यहाँ पे भी हम nums dot c begin भी कर सकते हैं, nums dot begin भी कर सकते हैं, मतलब दोनों टाइप के इटरेटर्स है, if you remember begin and c begin. तो ये कुछ भी हो सकता है, दैट इज द रीजन हियर आई एम सेइंग ऑटो मतलब लोकल वेरिएबल जैसे क्रिएट हो जाएगा. ओके, किसी भी टाइप का. देन a इज इक्वल टू nums डॉट बिगिन. तो आपका a जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, अभी nums डॉट बिगिन पे, मतलब पहले वाला जो आपका एलिमेंट है वेक्टर में, nums में. तो इट इज पॉइंटिंग, दिस a पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द बिगिनिंग पोजीशन. और कब तक ये a को इटरेट करना है, टिल a इज नॉट इक्वल टू nums डॉट एंड, मतलब जब तक एंड पे नहीं पहुंचते हो, num डॉट एंड विल गिव यू द एंड पोजीशन. So till you don't reach, not equal to मतलब till you don't reach to the end position, you just have to increment that pointer by 1. तो ये a is a pointer. You have to keep this in mind, understand this particular thing, that this begin, end, all these iterators return you a pointer. तो पहले तो आपका पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, बिगिन पे. ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक ये एंड पे नहीं आ जाता आपका पॉइंटर. And each time you need to increment that pointer by 1. And this is how I display those element. Cout star a. Star a मतलब this is a pointer, है ना. तो pointer के element हम कैसे access करते हैं, star a, है ना, with the help of asterisks. Okay, so asterisks and a. So these elements we are displaying till you don't reach to the end position. So this is how you can use iterators. Now I hope this how to use iterators and how to use modifier, that is clear to you all, है ना. एंड देन दूसरे लूप में मैंने क्या किया है, कुछ चेंज नहीं है, सिंपली यहाँ पे मैंने किया था बिगिन एंड एंड को यूज, यहाँ पे मैंने किया है सी बिगिन एंड सी एंड को यूज किया है ना, सी बिगिन एंड सी एंड. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने मॉडिफाई किया ही नहीं है. बिगिन और सी बिगिन में डिफरेंस इतना ही है कि हियर यू कैन मॉडिफाई दैट एलिमेंट, हियर यू कांट मॉडिफाई इट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, आपका आउटपुट सेम ही आएगा दोनों केस में. हियर जस्ट टू illustrate that example I have taken. मैं clearly आपको डिफरेंस बताऊंगी ये दोनों में नेक्स्ट एग्जांपल में.
यहाँ पे एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एलिमेंट्स आई गेट। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, लाइक 1 to 5, हियर सी बिगिन सी एंड से भी 1 to 5 मिलेगा आपको, है ना। जो भी हमने यहाँ पे पुश बैक किए थे, दोज एलिमेंट्स वी आर डिस्प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ these two for loop, same output I'm getting, okay। but this is example to understand how to use iterator, ये iterator से आपके और ये modifier से आपके, है ना। and how to create the object, how to include the library, so I hope this part is clear। अब यहाँ पे कहीं भी हमने अपना खुद का क्लास लिखा ही नहीं है वेक्टर का, वी आर डायरेक्टली यूजिंग, तो आपका प्रोग्राम बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है यहाँ पे। वी आर नॉट डिफाइनिंग दोज फंक्शन, दोज क्लासेस, वेक्टर क्लास, है ना। जैसे हमने ये यहाँ पे कैसे किया था, हमने खुद का क्लास लिखा था वेक्टर का, एंड देन आई एम यूजिंग इट, तो आपका काफी बल्कि हो जाता है फिर कोड इन दैट केस। हियर इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, मैं लिख ही नहीं रही हूँ क्लास को, इट इज इजी ऑल्सो ना, डायरेक्टली आई एम यूजिंग इट। Just by understanding the set of functions and the iterator, I can start writing, okay। Now this is the explanation, जो मैंने अभी explain किया वो सब available है, you can refer this site। Then second example में क्या किया यहाँ पे, again vector we are using, okay। तो यहाँ पे like I'm using different method here, assign method is also available there, okay। अगर आपको ये सारे एलिमेंट्स कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू से असाइन करने, कभी कभी कैसे होता है हमें सारे एलिमेंट शुरू में 0 करने होते हैं, यस। तो इन दैट केस आई कैन से nums, that vector which I have created, nums dot assign, this is also one important method that you should understand। assign method is there, and then how many elements I want, यहाँ पे मैंने elements mention नहीं किए, तो in assign I can mention number of elements that I want, 5 elements, okay। and each element to be assigned with 1। अगर मुझे 0 से इनिशियलाइज करने तो यहाँ पे मैं 0 बोलूंगी, तो 5 elements will get initialized with 0 वैल्यू। तो ऐसे कुछ भी किसी भी वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर सकते हो उस वेक्टर को, okay। so this is how you can perform initialization also with the help of assign। so 5 elements will be initialized with value 1, initial value सबका 1 होगा, okay। later on you can modify of course। so now this is simple method, जैसे आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो वैसे यहाँ पे एक्सेस किया है। यहाँ पे कैसे एक्सेस किया था हमने, with the help of iterators we try to access, है ना। यहाँ पे combination we are seeing, तो यहाँ पे for I is equal to और a is equal to 0 to nums dot size, है ना। ये हमारा नॉर्मल तरीका है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। यू शुड बी अवेयर दैट ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। तो 0 टू साइज ऑफ दैट nums, दिस इज वेक्टर, तो उसकी साइज तक हमें इटरेट करना है। तो साइज और कैपेसिटी, टू मेथड्स आर देयर इन वेक्टर, ओके। सो दोज आल्सो विल सी। साइज इज द एक्चुअल साइज, मतलब कितने एलिमेंट्स एट प्रेजेंट उसमें अवेलेबल है। तो सी आउट nums ऑफ a और i, जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, that count you can mention, that index you can mention here, nums of a। तो यहाँ पे 0 सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे 5 एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, एंड फॉर ऑल 5 वैल्यू विल बी 1, क्योंकि हमें इनिशियलाइज किया 1 से। तो आउटपुट इज फर्स्ट आउटपुट, इफ यू सी 5 एलिमेंट्स विद इनिशियल वैल्यू 1, 5 एलिमेंट्स है यहाँ पे। देन आई एम सेइंग मैं रैंडम है दिस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, जस्ट रैंडम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज। अब यहाँ पे कैसे किया है कि एक एंड पे मुझे 2 एलिमेंट को पुश करना है, तो आई से nums डॉट पुश बैक 2। सो दिस इज द एडवांटेज, डायरेक्टली मुझे पता नहीं है पुश बैक का एडवांटेज। देखो यहाँ पे आई डोंट नो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस वेक्टर फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, सिर्फ एंड में जाके एक एलिमेंट ऐड करना है। तो हियर आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट, लाइक मुझे वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है कि कितने एलिमेंट्स है, मुझे उस पे लोकेट करना है, एंड पे जाना है एरे में एंड ऑल दैट। आई विल नॉट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई एम सिंपली सेइंग nums डॉट पुश बैक। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली एंड में जाके ये वैल्यू आपकी ऐड कर देगा, ओके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग पुश बैक, ओके। देन अगेन दिस इज व्हाट n इज इक्वल टू num डॉट साइज, तो मुझे साइज मैंने n में ले लिए, एंड जस्ट आई एम सेइंग सी आउट nums ऑफ n माइनस 1। तो जो भी साइज है उससे एक एलिमेंट कम, लाइक बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम 0, है ना, द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज व्हाई n माइनस 1 आई एम सेइंग। तो ये डायरेक्टली ये जो ऑपरेटर है आपका सी आउट का, इट इज ओवरलोडेड हियर इन दैट क्लास। तो ऐसे हमारे नॉर्मल एरे के साथ हम डायरेक्टली नहीं यूज करते सी आउट एंड वो एरे का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। वी शुड हैव अ फॉर लूप, इफ यू रिमेंबर, ऐसे फॉर लूप से कर सकते हैं हम।
then see out nums of I. ये जो आपने for loop से किया था, this is your normal way, है ना? तो instead of that, what I'm saying, simply see out nums of and that square bracket. तो इससे क्या होगा? Directly those many elements also you can display. Okay, or that specific, sorry, here specific elements I'm displaying here. Sorry, this is specific element I'm displaying here, nums of n minus 1. मतलब the last element 0 to size is, it will give you the actual size. अभी पहले size था आपका 5. By incrementing this, it will become 6 size. Okay, and तो यहाँ पे n में value क्या है आपकी 6. Okay, तो यहाँ पे आपको सपोज लास्ट एलिमेंट इफ यू वांट टू डिस्प्ले, तो लास्ट एलिमेंट मतलब आपको क्या बोलना पड़ेगा, नम्स ऑफ साइज माइनस 1, बिकॉज द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो इट विल स्टार्ट द नम्स ऑफ फिफ्थ एलिमेंट हियर. ओके, सो जो भी आपने लास्ट में पुश किया था, दैट एलिमेंट विल गेट डिस्प्लेड हियर. देन नेक्स्ट इज व्हाट, nums डॉट पॉप बैक. पॉप बैक से क्या होगा, एंड वाला एलिमेंट आपका निकल जाएगा जो भी आपने डाला था. And then again I'm displaying those elements. Okay, so likewise you can use any of these set of instructions which are available. आपका time हो गया actually, like I'll just close this example. Nums dot insert. Insert is a method directly. That method you can directly use. And this insert method जो हमने यहाँ पे देखा था, if you remember, insert is a method directly use. Insert है ना, आपका modifier है वो. So that modifier you can directly use here. Okay, तो insert modifier I am using. तो insert के लिए क्या लगेगा कि कौन से पोजीशन पे आपको insert करना है और कौन सा वैल्यू आपको insert करना है. Two methods. तो suppose beginning पे मुझे insert करना है, तो here I'll use iterator. Combination use कर रही हूँ, देखो. This is a iterator I am using to point to that particular location. Nums dot begin. और फिर कौन सी वैल्यू मुझे डालनी है, 7 वैल्यू मुझे डालनी है. तो 2 इनपुट्स टू दिस इंसर्ट मेथड. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इंसर्ट. अगर मैं यहाँ पे, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिगिन एंड सी बिगिन. अगर मैं यहाँ पे सी बिगिन करती तो इट वोंट अलाउ मी टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट. सी बिगिन मतलब कांस्टेंट, वो मुझे ये अलाउ नहीं करता. तो मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट, मतलब मुझे कुछ मॉडिफाई करना है वेक्टर को. तो इन दैट टाइम आई हैव टू यूज ओनली बिगिन इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे सी बिगिन नहीं चलेगा ना आपका, क्योंकि कांस्टेंट मतलब वो मॉडिफाई नहीं करने देगा वो आपको. बट बिगिन विल अलाउ यू टू मॉडिफाई दैट एलिमेंट, है ना. तो बिगिनिंग में योर पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग, सो दिस 7 विल गेट इंसर्टेड वेयर, एट द बिगिनिंग. ओके, एंड देन nums डॉट क्लियर, मतलब जितने भी अभी आपने डाले थे एलिमेंट्स वो सारे क्लियर करने के लिए nums डॉट क्लियर इंस्ट्रक्शन. सो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑब्जर्व these output also. Okay, so this is about the vector class. So next time we'll discuss about the some standard algorithm